Hello students, my name is Rajesh Parikh. I welcome from the platform of SMD, and today we are going to start chemistry of class 11th. So from the very beginning, I just want to tell you a general view of chemistry. In 11th class of chemistry, you will find there are three parts in chemistry: physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry. And all the units of 11th class are very much important because they related with the 12th class chemistry. How they are related, I will tell you. See, in this first unit, which is named as some basic concepts of chemistry, as this chapter seems very easy, that we are just going to discuss just some basic concepts. But this chapter is really worthy. There are many topics in this chapter which will come in your senior class, in 12th class chemistry. Okay, so you should take this chapter sincerely. You should follow all the topics accordingly. Okay, now see how the chemistry had started and what do you mean by the chemistry. Clear? See, what does chemistry mean actually? What does it mean? Chemistry is simply the study of elements and compounds. Elements and compounds. Study of elements and compounds is called chemistry. It is a very short and sweet definition. Clear? And in the 10th class you had studied that in the chapter the periodic table, you have studied that about 118 elements are found till date. In that table, many of elements are synthetic elements. After the uranium, the elements are synthetic, and those elements are also called transuranic elements. Okay, and whatever around us that comes under that periodic table. Okay, next see introduction of chemistry. See, very first, as we had discussed the definition, what is chemistry? It is just study of elements and compounds is called chemistry. Next, how the chemistry was developed. It is very important in the sense you should know this. Okay, in the very beginning, in the ancient civilization, it was known that there was some stone that is called Paras Patthar, that is also called philosopher's stone. I think you had seen the movie Harry Potter. In that movie, there was a stone, that was some stone that seems like shiny stone was there. Okay, और आपने सुना भी होगा कि पारस पत्थर है, ये ऐसा स्टोन है जो कि किसी भी जो बेस मेटल होते हैं, बेस मेटल का मतलब जो फाउंडेशन मेटल होते हैं ना, जैसे कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, आयरन है, ठीक है, इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है. अर्लियर इट वाज नोन दैट. ओके, एंड नेक्स्ट वन वाज एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जिसको कि हम अमृत बोलते हैं. ये भी पुरानी कहानियों में, पुराने कहावतों में ये चीज़ें चलती थी. ये भी केमिस्ट्री का बेसिक्स यहीं से स्टार्ट हुआ था. धीरे धीरे कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है ना, धीरे धीरे जब स्टार्ट होती है तो उसका फाउंडेशन ऐसे ही बनता है. पहले तो वो चीज़ें होती है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है. ठीक है, वो चीज़ें छोटी छोटी कहानियों से मिलके बनती हैं. ठीक है, जैसे केमिस्ट्री की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, फिलोसोफर स्टोन से, एलिक्सिर ऑफ लाइफ से. ठीक है, फिलोसोफर स्टोन जिसको हम पारस पत्थर बोलते हैं, एलिक्सिर ऑफ लाइफ जिसको कि अमृत कहा जाता था. दैट वाज जस्ट आइडिया. ओके, नेक्स्ट सी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. The first point of this chapter is importance of chemistry. As we had just discussed
दैट व्हाट इज केमिस्ट्री? इट इज स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। और हमारे चारों तरफ जितने भी सब्सटेंस हैं उन सब में केमिस्ट्री है, सब में। कोई भी चीज़ आप देख लो। मैं भी एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल हम अभी डिस्कस करेंगे, एक दो, ठीक है। जैसे स्टार्ट किया हमने, जो बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्लोथ मैंने डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। और क्लोथ भी कौन सा है? कॉटन क्लोथ है, ठीक है। कॉटन क्लोथ है, वो किससे बना है? ये कॉटन से बना है। और कॉटन किससे बना है? कॉटन फाइबर से बना है। कॉटन इज मेड अप ऑफ फाइबर एंड दीज फाइबर आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड दिस सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। यू नो, ग्लूकोज है वो मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के जब कंबाइन होंगे एक स्पेसिफिक पैटर्न में तो वो बनाएंगे सेलुलोज। वो पैटर्न क्या है वो अब आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। वो मैंने कहा ना आपको कि ये तो बेसिक है, यहाँ तो आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ केमिस्ट्री है। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ हमको दिखाई दे रही है वो सब का सब केमिस्ट्री ही है। आई एम जस्ट जस्टिफाइंग दैट। एंड ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ combining carbon, hydrogen and oxygen. How? Because the chemical formula of glucose is C6H12O6. तो C, मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्लोथ किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है। और इसका नॉलेज तो आपको 10th क्लास से बहुत अच्छे से आपने इसको गेन किया होगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल, एक सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने डस्टबिन का, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, प्लास्टिक, ठीक है। बेटर से प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। प्लास्टिक बहुत सारे, मतलब प्लास्टिक तो ऐसा हो गया सब जगह मिलता है प्लास्टिक। तो हर, मतलब ऐसे डेली रूटीन की चीज़ों में इतना प्लास्टिक यूज़ होता है कि हर एक चीज़ में आपको ये मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि टूथब्रश ले लो आप, टूथब्रश, ठीक है। टूथब्रश का जो ब्रिसल्स होता है ना, ब्रिसल, ठीक है। टूथब्रश का जो ब्रिसल होता है, उसको फाइबर होते हैं, वो बनते हैं नायलॉन 66 से। नायलॉन 66 से बने होते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये तो केमिकल नेम है एक्चुअली। ये जो केमिकल है इसके कंपोजिशन में होता क्या क्या है बस वो देख लो आप, ठीक है। इस केमिकल कंपोजिशन में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके कॉम्बिनेशन से ही टूथब्रश के ब्रिसल्स बन जाएंगे। और टूथब्रश का जो प्लास्टिक है, जो हैंडल होता है, प्लास्टिक वाला हैंडल होता है, वो किससे बनता है? देखो प्लास्टिक की बात आ गई फिर से। एक्चुअली प्लास्टिक है वो इथीन से बनता है। ये इथीन आपने 10th क्लास में पढ़ा है। 10th क्लास में जो 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें इथीन है, उसका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। रेने निकल, रेने का मतलब पाउडर्ड निकल के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन होता है। तो उससे क्या बनता है? उससे एथेन बन जाता है, ठीक है। तो इथीन से, इथीन मतलब ये है, ये इथीन है, इथीन है। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे तो बनता है पॉलीइथीन। क्या बन गया? पॉलीइथीन बन गया। और यही वो पॉलीथीन है जो हम रूटीन में काम लेते हैं ना, पॉलीथीन थैली जिसको बोलते हैं, वो है ये। अब ये पॉलीथीन दो तरह की होती है। ये पॉलीथीन दो तरह की होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन। दो कैटेगरी की होगी। हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, ये हैवी ड्यूटी वाली होती है थोड़ी सी। लो डेंसिटी पॉलीथीन हल्की होती है, ठीक है। अब देखो ये एक तरह से आइडिया हो गया 12th क्लास का, ठीक है। 12th क्लास में पॉलीमर चैप्टर के ही एग्जाम्पल आ रहे हैं सामने। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम ये बोल रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया? पॉलीमर। ये पॉलीमर ही तो है। पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया? पॉलीमर्स इन डेली लाइफ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस हो गया केमिस्ट्री का, एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखो, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि प्लास्टिक है, इसका कंपोजिशन क्या है बताओ भाई? ये बनता है इथीन के मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से। बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, उससे बनता है, ठीक है। और अगर मान लो आप कल को जाके देखो कि भाई सर ने तो ये पॉलीथीन का फार्मूला तो कुछ और ही बताया, प्लास्टिक का फार्मूला, तो मैं फार्मूला, जनरल फार्मूला लिख ही देता हूँ इसका। CH2 और ये N, ये है पॉलीथीन का एकदम जेन्युइन फार्मूला। अब आप इसमें ये देख लो
एन का मतलब तो है नंबर ऑफ दीज यूनिट्स, ये यूनिट्स कितनी आ रही है उनका नंबर, इसका मतलब नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स देख रहे हैं। यहाँ पे ये बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन से। किससे बन रहा है ये? कार्बन और हाइड्रोजन से ही बन रहा है ये। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से प्लास्टिक बन जाता है। फिर से वो चीज़ आ गई, यानी एलिमेंट्स है, एटम्स है ना, पर्टिकुलर एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही प्लास्टिक बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया चौक का। चौक का एग्जांपल लेता हूँ। चौक किससे बनता है? चौक बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। अब देख लो, इसमें कैल्शियम है, कार्बन ऑक्सीजन है, ये भी इसी से बना होता है। ठीक है, अब ये जो मार्कर है, ये मार्कर भी प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक से बना हुआ है तो प्लास्टिक का मतलब इसमें ये चीज़ें तो होगी। बाकी जो कलरिंग आपको दिख रही है इसके अंदर, वो डाइज से आ जाएगी। डाइज जो होती है, डाइज होते हैं पिगमेंट, कलरिंग सब्सटेंस होता है। डाइज होते हैं कलरिंग सब्सटेंस। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है इयोसिन। इयोसिन है, ठीक है, वो इसका एग्जांपल है। सूडान रेड है, वो रेड कलर की डाई है। ठीक है, वो भी केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं भाई? यहाँ तक तो पॉलीमर कैटेगरी में आ गया, ये डेली यूज में आ गया चौक। ठीक है, ये डाइज क्लॉथ इंडस्ट्री में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेडिसिन्स। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है और मेडिसिन तक पहुँच गए हम। मेडिसिन में तो केमिस्ट्री के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। मेडिसिन पूरा केमिस्ट्री से ही लिंक है। मेडिसिन में देखो सबसे कॉमन ये वर्ड आपने सबने सुना है, पैरासीटामोल। ठीक है, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, ये फीवर में काम में आता है। इसकी अगर हाई डोज लो आप तो वो बोन का जो पेन है उसको भी सही करता है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा हाई डोज जो होती है वो डेंटल पेन में भी काम आ सकती है। ठीक है, इसके बाद देखो ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है। ठीक है, 11th क्लास के जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर ये आपके एग्जाम्पल है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन जो है ना, ये एंटी कैंसर ड्रग है और ये आपके 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, उसमें इसका स्ट्रक्चर भी है प्रॉपर। इसमें प्लेटिनम होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? प्लेटिनम। क्लियर है, और ये एक एंटी कैंसर ड्रग हो गई। इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग एसाइक्लोविर। ये एक एंटीवायरल ड्रग है। आपने अभी इसमें कोरोना की जो कुछ मेडिसिन है सुना होगा। पहले जो स्टार्टिंग में आई थी, जो फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, वो भी केमिकल ही है। ठीक है, और जो अभी चल रहा है रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब, ये भी क्या है? ये भी केमिकल कंपाउंड है। रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग में आता है, VIR लास्ट में लग गया ना, वो भी एंटीवायरल ड्रग है, वो इससे एडवांस है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो, अब ये एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री बहुत वास्ट है। इसको हम जितना पढ़ें उतना कम है। ठीक है, लेकिन इसका आइडिया ऐसा है कि भी इसका आइडिया थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। रीज़न क्या है कि आपके पास जब आइडिया होगा आपको कि इम्पोर्टेंस में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से फील्ड्स आते हैं,